أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی آسک اینڈ عالمہ کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے روزے بہترین جا رہے ہوں گے اور امام اثر اکیڈمی کے تھرو سیکھنے کا عمل جاری ہوگا۔ اور امید ہے کہ اب تک ساری کلاسز جو امام اثر اکیڈمی نے آفر کی ہیں ان سب سے آپ مکمل طور پر مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو آج کی کلاس آسک اینڈ عالمہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم آپ کے بھیجے گئے سوالات عالمہ سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کویشچنس کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں imamasarakademy@gmail.com with any questions, comments, suggestions اور فیڈ بیک۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا رول آف فاسٹنگ یعنی روزے کے احکام کے متعلق۔ تو آئیے عالمہ حافظہ ربیہ فاطمہ کی جانب چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم خانم، انشاءاللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بالکل خیر اور عافیت سے ہوں اور آپ تمام حاضرین، ناظرین، سامعین کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان طلاب کو جو سیکھنا چاہتے ہیں خداوند عالم ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کا ہر لمحہ عبادت میں قبول فرما لے، اور آپ حافظین علم نہ بنے بلکہ حاملین علم بنے۔ جہاں آپ جائیں آپ کے میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے ہر عمل کے ساتھ آپ کا یہ علم جائے، لوگ آپ کو قرآنی شخص کہیں، آپ کو قرآنی بندہ کہیں انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ یہ جو روزوں کی نعمت ہے میں بتاؤں، یہ ماہ رمضان المبارک مقناطیس ہے۔ یہ ایک وہ مقناطیس ہے جو ہم جیسے گناہگار بندوں کو اپنی طرف کشش کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ لاکھ کوئی بندہ گناہگار ہو نا، پورے سال وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں، پورا سال نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن جہاں ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، انسان کہتا ہے نہیں اب میرے معبود کی جانب پلٹنے کا وقت آیا ہے، اب مجھے گناہوں سے بریک چاہیے، مجھے کچھ چاہیے، اپنے معبود کی جانب قریب ہونا چاہیے۔ انسان فوراً لپک کرنا اسے حاصل کر لیتا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے پیچھے، لیکن اب جب وہ روزہ شروع کرتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ میں پورا دن بھوکا رہ رہا ہوں، اب پتہ نہیں روزہ رکھنا، بھوکا رہنا قبول ہونا ہو، مجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہاں سے انسان خدا کی جانب دوبارہ دوسرا قدم، یعنی ہے یہ دوسرا رکن، لیکن اٹریکشن اس میں ایسی ہے کہ فوراً انسان اس کی طرف راغب ہوتے ہی پہلے رکن یعنی نماز کی جانب بھی رغبت اختیار کرتا ہے۔ پھر یہاں سے انسان جھوٹ، کہیں ایسا نہ ہو اتنی مشقت سے روزہ رکھا ہے کہیں جھوٹ کی وجہ سے باطل ہو جائے، یہ برائی چھوٹی۔ پھر غیبت نہ کروں کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، روزہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے نا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا روزہ باطل۔ روزہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو فقط کھانا پینا چھوڑنے کے نام روزہ تو نہیں ہے۔ امام صادق فرماتے جب تم روزہ رکھتے ہو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا، ہر چیز کا روزہ ہے نا۔ تو انسان غیبت سے پرہیز کرتا ہے، اس طرح ایک روزہ کو اتنی برائیوں سے دور لے جاتا ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہر وہ کام جو عام لائف میں، عام ہماری معمولات میں، عام روٹین میں کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے، ان رمضان میں وہ بھی عبادت ہوتے ہیں۔ کیسے؟ سونا، آپ سو رہے ہیں اپنے لیے سو رہے ہیں بھائی، خدا کے لیے تھوڑی سو رہے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے اس کے عوض ثواب رکھ دیا۔ آپ اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھیں، اپنی نظروں کو ہٹا لیں، مباح ہے کسی کو ہٹا لینا، اس میں کیا ثواب ہے، لیکن خدا نے اس میں ثواب رکھ دیا۔ یہاں تک شیخ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں، آیت اللہ مراجعی نجفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مراجع نجفی میں نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ تقریباً انسان دن میں 1600 مرتبہ سانس لیتا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار سانس لیتا ہے
व आल मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो रोजेदार की एक सांस के एवज एक नेकी है, यानी आपने कुछ भी नहीं किया, फकत आपने एक दिन रोजा रखा और एक रोज में 21,700 के करीब आपने नेकियां कमा ली बगैर सुभान कुछ अल्लाह, किए, सिर्फ सुभान सांस अल्लाह। लेने को। सांस रोकेंगे ना आप तो कितनी खूबसूरत, यानी वो काम जिनका कोई फायदा ही नहीं है और खुदा के लिए क्या किया आपने, उसका भी इतना अजर व सवाब है। तो सुभान खुदा अल्लाह। बंदे आलम रोजे इंशाल्लाह, और आपके हर रोजे को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह। हर रोजे के साथ खुदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ता हुआ एक कदम हो इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अल हाफ़िज़ा रबिया फ़ातिमा। सो अब हम अपने पहले सवाल की जानिब चलते हैं। सो हमारा पहला सवाल है, कैसे मालूम हो कि लड़कों पे रोज़ा वाजिब हो गया है और मैं किस तरह रोज़ा रखने की आदत डालूँ क्योंकि वो बहुत कमज़ोर लगता है? ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़कियों के मामले में तो हम श्योर होते हैं कि भाई अब यहाँ पर वाजिब हो गया है और हमें यहाँ से रोज़ा रखवाना है। गो के वो भी अ, उम्र नहीं है, 9 बरस से ही उलमा ने हदीस की रोशनी में इस बात को वाजिब करार दिया है कि 9 बरस से ही बच्ची पर रोज़े और हिजाब और दीगर शरई मामलात हलाल हो जाते हैं, वाजिब हो जाते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि अब लड़कों के लिए इंसान कन्फ्यूज़ रहता है। हुँ, वैसे तो शरई उम्र 13 से 14 बरस है, लेकिन अक्सर बच्चे 14 या 13 बरस से पहले यानी 11-12 साल में बालिग हो जाते हैं, चंद 14 बरस के भी बाद बालिग हो जाते हैं। तो इसका क्या तरीका वसल्लम ने और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जब लड़का 10 बरस का हो जाए, 10 बरस का हो जाए, 11वें बरस में लगे या 11 बरस का हो जाए, तो उस वक्त लड़के को एक रोजा मुकम्मल रखवाओ। अगर एक मुकम्मल रख ले तो दूसरा रखवाओ और फिर तीसरा रखवाओ। अगर बच्चा 3 रोजे पे दर पे मुकम्मल कर लेता है तो समझो उस पर रोजे वाजिब हो गए हैं और अब उसे मुकम्मल रोजे करवाना आप पर भी वाजिब है और उस बच्चे पर भी वाजिब हो गया है। और सुभान अगर अल्लाह। आप ये सोचते हैं बच्चा नातवा है तो देखिए ये उज्र नहीं हुआ रोजा छोड़ने का, है ना? इंशाअल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला के पास एक मुहम्मद व औरत अला आई और आके कहा या रसूल, कहा मेरा बेटा रात में बहुत थक के सोता है, इतना मजदूर है, बहुत ज्यादा मेहनत कश है, सुबह उसे नमाज फज्र के लिए उठाते हुए मुझे बहुत मुश्किल होती है और मैं इसलिए नहीं उठा पाती, मेरी ममता आड़े आ जाती है कि उसे सोते हुए मैं कैसे उठाऊं, मेरा जी नहीं करता कि इतना थक कर सोया मैं उठा दूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अच्छा एक बात बताओ, बेटा थक के सोया हो और घर में आग लग जाए, क्या करोगी? कहा मौला मैं उसे तेजी से उठाकर दौड़ती हुई ले जाऊंगी। कहा अगर वो बेहोश हो रहा हो और तुम उसे उठाने पर कुदरत न रखते हो तो क्या करोगी? कहती है मौला मुझसे जो मुमकिन होगा मैं एक रस्सी को उसके जिस्म में बांधूंगी और उसे खींचते हुए उस आग से निकाल के ले जाऊंगी, वरना मेरा बेटा हलाक हो जाएगा। फरमाया तो हो, तुम्हें इस बात पर तो यकीन है कि रोजे से आग से बचाना तुम्हारे लिए अपने बेटे को वाजिब है, तुम्हारी ममता इस बात की तो इजाजत देती है कि आग लगे तो अपने बच्चे की नींद खराब करके उसे बचा लो, मगर वो जो जहन्नुम की आग उसका इंतजार कर रही है उसका क्या? वो आग इस पे सबकत ले जाती है, औरत अपने बेटे को जहन्नुम की आग से बचा ले। तो अगर आज और आप हम जरा ममता का सबूत देते हुए बच्चों पर ये कहते हैं ना कि नहीं तो बहुत छोटा है हुँ, कैसे रोजा रखेगा, नहीं, अपनी उम्मीदों को सस्टेनेंस दीजिए, अपनी ख्वाहिशात को अपने इरादों को आखिरत से मरबूत करने की सुभान जरूरत है। अल्लाह। अगर हम अपने इरादों को मजबूत कर देना कि मेरे बच्चे को खुदा ना खास्ता मैंने ऐसी तरबियत की, आज मेरी बच्ची को हिजाब करने में गर्मी लग रही है, कल मैंने ऐसी तरबियत की कि जहन्नुम की आग बर्दाश्त करनी पड़े, क्या होगा? अल्लाहु अकबर। अगर बच्ची नमाज पढ़ी थक जाती है, आगे अगर महशर में कितनी देर तक खड़ा रहना पड़ा तो क्या होगा? आपकी तरबियत आखिरत के लिहाज से होनी चाहिए, दुनिया के लिहाज से सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आलिमा हाफ़िज़ा रबिया फ़ातिमा। अब हम अपने दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं और हमारा आज का दूसरा सवाल कराची, पाकिस्तान से आया है। उन्होंने लिखा है, पिछले साल ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी मेरे पूरे रमज़ान के रोज़े छूट गए थे और अब तक मैं खाली एक कज़ा रोज़ा रख पाई हूँ। इस सिचुएशन में कफ़ारा और कज़ा रोज़ों का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाह ताला, सबसे पहले तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कफारा क्या है, फिदिया क्या है और कज़ा क्या है, ठीक है? कफारा क्या होता है? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमें मालूम नहीं, हम वर्ड कफारा यूज करते हैं। कफारा होता है गुनाह का,
اگر آپ کا روزہ شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے تو وہ کفارے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا روزہ چھوڑ دے وہ شخص کفارہ ادا کرے گا. اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک روزے کا کفارہ ہے 60 یا تو پے در پہ روزے رکھے. نمبر 2 اگر یہ نہ کر سکے تو ایک غلام آزاد کرے. یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ ہوتا ہے کفارہ کہ اگر آپ نے جان کر چھوڑا یا توڑا. اب آتی ہے شرعی عذر کی بات. تو شریعت میں بوڑھے لوگ یا وہ خواتین جو حاملہ ہوں یا وہ خواتین جو دودھ پلاتی ہوں جو جن کے بچے مدر فیڈ پر ہوں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہم اپنا اس کو گناہ نہ سمجھیں. یہ قول امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میں کوشش کر محمد آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ فقط علماء کرام کی بیان نہ ہوں بلکہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں میں کوٹ کر سکتی ہوں وہ بھی کوٹ کروں. ٹھیک ہے. تو علماء کرام کے نزدیک اور خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جن کا وضع عمل کا وقت ہو یعنی ڈیلیوری ٹائم ہو 15-20 دن میں ڈیلیوری ٹائم ہو اس کا ڈیلیوری ٹائم قریب ہو اس پر تو روزے ہیں ہی نہیں. اور وہ خاتون کہ جس کا مدر فیڈ کی وجہ سے اسے خطرہ ہو کہ دودھ کم آئے گا. ظاہر بچے کو غذا دے رہے ہیں جب تک خود نہیں کھائیں گے تو کس طرح سے بچے تک اس کی غذا پہنچے گی. تو فرمایا وہ خواتین جن کا ڈیلیوری ٹائم قریب ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. یہ دونوں چیزیں آ گئی. وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے اوپر پہلی بات تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر آپ اس پر بھی اپنے اوپر ظلم کر کے روزہ رکھتی ہیں تو خدا کو ایسا روزہ قبول نہیں ہے. آپ نے اس کے آیت کردہ کچھ ماں کو دیکھتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے اور آپ اپنے اوپر ظلم کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ بہت اچھا بندہ بن رہی ہے. نہیں, آپ خدا کے عائد کردہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں اور یہ تو گناہ ہے. سب بجائے آپ کو ثواب ملے آپ کو گناہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ کے پچھلے سال روزے چھوٹ گئے اس کی صرف آپ پہ قضا واجب ہے. قضا کیا ہے؟ ایک پر ایک روزہ رکھنا ہے. یعنی اب جب رمضان آئے گا تو آپ کو ایک رمضان سے پہلے آپ کو وہ 30 روزے مکمل کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب چند موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو ہے بچے کی ولادت ہوئی تھی اور اس سال کیا ہے یا پچھلے سال حاملہ تھی اس سال مسئلہ ہے کہ بچے کو دودھ پلاتے ہیں. ظاہر بچہ چھوٹا ہے ناتواں ہے اب کیا کریں؟ یہ سال پھر آ گیا پچھلے پورے سال روزوں کی قضا نہیں ہوئی. یہ سوال بھی یہ بھی سوال کا حصہ ہے کہ پہلے جو 30 روزے تھے وہ پورے سال رکھ نہیں پائے وہ اسٹل قضا ہیں اور اب دوسرا رمضان آ گیا. اس صورت میں کہ اب اگر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک روزہ رکھیں اور پچھلے روزے کی قضا باقی رہے گی. بعد میں آپ نیت کریں کہ جب میں قابل ہوں گی میں روزہ رکھوں گی لیکن پچھلے روزے کا فدیہ دینا ہے. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ از ناٹ اے پینلٹی. فدیہ از giving something alternatively آپ خدا کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں وہ بھی فور اے ٹائم بینگ تھوڑے وقت کے لیے کہ خدا را میں ابھی اس کام کو نہیں کر سکتی اس کو مجھے ملتوی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس حال میں فدیہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال کے روزے ابھی تک نہیں رکھے لیکن یو آر ریڈی کہ اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ ایک روزہ رکھیں گے اور پچھلے سال کے روزے کا فدیہ دیں گی. فدیہ کتنا ہوگا؟ آپ کی ایک معمولی جو خوراک ہے ایک وقت کی خوراک. یہ پرفیکٹ فدیہ ہے. کچھ لوگ 3 پاؤ کہتے ہیں اب کچھ لوگوں کی اب اگر میری خوراک زیادہ ہے تو 3 پاؤ کم ہوا نا. ویسے ایک جو مناسب مقدار ہے وہ 3 پاؤ آٹا یا چاول یا کوئی بھی غذائی اجناس یعنی آپ روٹی دے دیں یا وٹ ایور 3 پاؤ دے دیں یا اپنی خوراک کے مطابق ایک مسکین کے لیے ایک شخص کے لیے آپ فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے. ایک مد کے برابر اسے مد کہتے ہیں یعنی 3 پاؤ. دوسرا روزہ رکھا اس روزے کا فدیہ دیا. ٹھیک ہے. اب اور کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے اس سال اس ماں کو بچے کو دودھ بھی پلانا تو اس سال پھر روزہ نہیں رکھ سکتی. اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس روزوں کا اور ان روزوں کا یعنی 2 روزوں کا فدیہ دینا اور اگر آپ کے ہاتھ میں یہ بھی نہیں ہے تو فقط ایک روزے کا فدیہ نکالیں. ٹھیک ہے. یعنی جو پچھلے سال کے ہیں یا اس سال کے نیت کر لیں اور اس سال کے روزوں کا فدیہ نکالیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ کے پاس 60 روزے اب بھی باقی ہیں یعنی پچھلے سال کے اور اس سال کے تو آپ مکمل پورے سال میں جب آپ دودھ چھڑوا دیں تو ایک ایک کر کے
रोजा रखें, तब भी ये नहीं कि आपको पे दर पे रखने, नहीं, बल्कि आप एक रोजा 5 रोजे शाबान में रख लिए, 5 रोजे रजब में रख लिए, वो भी इस साल पूरे कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अगले साल करें। आप अपने पास लिख लें कि मेरे इतने रोजे कजा हुए हैं और मुझे पूरे करने हैं। बहरहाल फिदिया क्या है, फिदिया कफारा बहुत अलग चीज है, फिदिया ये कजा अलग चीज है। कजा मतलब है आपने एक रोजा जो कि शरई उज़्र की वजह से छोड़ा तो आपने उसकी जगह एक रोजा रख लिया। अब चूंकि वो कजा आप पूरी नहीं कर पा रहे, अब जैसे मैंने बताया कि पिछले साल जो आपने रोजे रखे थे वो अभी तक कजा, और अभी माह मुबारक आ गया, अभी क्या कर रहे हैं, आपको अभी के रोजा आपका कजा हो गया बाद के लिए, ठीक है। अभी आपने पिछले रमजान के सिर्फ फिदिया देना है, आपने फिदिया दिया और अभी का रोजा कजा लिख लिया, तो आगे आप उसकी अगले साल कजा कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने कजा, जो राइट नाउ आपका वाजिब हुक्म है वो कजा हो गया अगली बार के लिए, और जो लास्ट टाइम आपने कजा किया था वो फिदिये में चेंज हो गया। इंशाल्लाह बात समझ गए। Jazakallah. Thank you so much for बेहतरीन clarification on this question. तो अब हम चलते हैं अपने third question की जानिब. So एक सिस्टर ने सवाल किया है कि ख़वातीन के मंथली साइकिल के दौरान जो रोज़े छूट जाते हैं, क्या उन रोज़ों की क़ज़ा है? और अगर तादाद ना मालूम हो तो फिर क्या हुक्म है? ये याद रहे कि जो मैं आप लोगों को जवाबात दे रही हूँ वो उलमा के फतावों के मुताबिक है, और जहाँ कहीं कोई किसी आलिम का फतवा यानी आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा रहबर मुअज़्ज़म के फतवे से मुख्तलिफ जाएगा तो मैं उसकी तशरीह कर दूंगी। तो जो भी मैं सवाल का जवाब दूंगी वो तमाम उलमाए कराम और मराज उज़्ज़ाम के मुताबिक और हदीस मासूमीन के मुताबिक होगा। अगर किसी आलिम ने उसकी मुखालफत की होगी या इख्तलाफ राय दी होगी यानी डिफरेंट हुक्म होगा तो मैं आपको वाज़ेह कर दूंगी, तो कंफ्यूज ना होइएगा। पहली चीज ये कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि जो मंथली साइकिल के दौरान, शरई उज़्र के दौरान, चाहे वो हामिला हो चाहे मंथली साइकिल हो, उस दौरान जब आप रोजे नहीं रखते तो रोजे की कज़ा वाजिब है, नमाज की कज़ा वाजिब नहीं है। यानी अगर मंथली साइकिल के दौरान आपने नमाजें छोड़ी तो इन नमाजों की कज़ा नहीं करनी होती, लेकिन रोजों की कज़ा वाजिब है। अब सवाल पैदा होता है, जैसे पहले भी था कि एक बंदी के 60 रोजे हो गए, उन्होंने 4-5 रख दिए और भूल गई है कितने बाकी हैं, है ना। अब इतने सारे गैदर हो जाते हैं, बंदा भूल जाता है। और वैसे भी इंसान को, अब जैसे कुछ लोगों को हुक्म ही नहीं पता था कि मेंस्ट्रुएशन के दरमियान जो आपके रोजे होते हैं आपको उसकी कज़ा देनी होती है, वो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। और अब आपको पता ही नहीं कि आप पे कितने रोजे कज़ा हैं। तो तरीका ये है कि जितना आप हिसाब लगाएं, जितना आप दूर तक जा सकते हैं, जितना आपके ज़हन और गुमान में आ रहा है और आपको श्योरिटी उतनों की कज़ा है, बाकी माफ है, ठीक है। जितने आप कज़ा रख सकते हैं, यानी जितनों की कज़ा को मालूम है, एक कैलकुलेशन के मुताबिक आपके ज़हन में कुछ तो होगा ना कि मैंने इस साल छोड़े हैं, इस साल रखे हैं, तो जितनी तादाद आपके ज़हन में आ रही है अयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक आप उतने रोजे रख सकते हैं, ठीक है। और रहबर मुअज़्ज़म के मुताबिक आपके लिए ज़रूरी है कि जो कज़ा रोज़ों की तादाद आपको मालूम नहीं उसकी कज़ा भी करें, और अगर आपके इस्तिताअत में हो तो उसका फिदिया भी लें। बेहतर, बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच आलिमा। सो अब हमारा चौथा सवाल है कि क्या अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या शौहर पे वाजिब है कि उसे दूध पिलाने की कुछ रकम मुकर्रर करे? और अगर शौहर वो रकम नहीं देता और अगर ऐसी खवातीन रोज़ा नहीं रख सकती तो क्या उन पे भी कफ़ारा या क़ज़ा रोज़े वाजिब हैं? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को रेज़ किया जाता है तो बहुत से लोग आपके मुखालिफ भी हो जाते हैं। लाइक अक्सर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई ये तो तुम पे वाजिब है बच्चे को दूध पिलाना, तुम नहीं पिलाओगे तो कौन पिलाएगा। तो अगर हम इस्लाम से इन सवालात के जवाबात लेना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम या खातून जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे उस पर वाजिब है सास ससुर की खिदमतें करना और एक साथ रहना तहजीब की अलामत है, तो क्या आप तहजीब रसूल खुदा से ज्यादा जानते हैं कि जब मौला अली रसूलुल्लाह के साथ रहते हैं, लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो फरमाते हैं ए अली अपने लिए घर का एहतमाम करें। वैसे रसूलुल्लाह खुद शेब अबी तालिब में तमाम तर लोग साथ रहते हैं, उसके अलावा खुद रसूलुल्लाह जनाब अबू तालिब के घर में रहते हैं, लेकिन जब जनाब खदीजा से अक्द होता है तो रसूलुल्लाह अपने घर को जुदा कर लेते हैं। तो अगर आप इसे तहजीब कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को, तो क्या वो शख्स वो जात जो इन्नका लअला खुलुकिन अजीम के रुतबे पे फाइज है, वो आप उनसे ज्यादा मेहरबान, आप उनसे ज्यादा खुल के खुदा पर राइज हैं, आप उनसे ज्यादा अखलाक और तहजीब के मुतहम्मिल हो सकते हैं ना। तो हमें इस्लाम किससे लेना है? रसूल मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना है। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये मसाइल पेचीदा हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं जरा अपने जवाब की तरफ आऊं कि भाई
औरत के लिए बच्चे को दूध पिलाना वाजिब नहीं है, बल्कि ये औरत के हुकूक, बच्चे के हुकूक में भी शुमार नहीं होता। वालिदैन या वालिदा पर हक है कि उसकी तरबियत करे, उसको तालीम दे, उसका ख्याल रखे, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप से ही उसे ग़िज़ा दे, यानी दूध पिलाए, यानी मदर फीड ज़रूरी नहीं है। और बहुत से फ़ुक़हा कहते हैं कि नज़दीक मर्द पर वाजिब है, और बहुत से फ़ुक़हा के नज़दीक बेहतर है कि वो मर्दों पर वाजिब है, या मर्दों के लिए ज़रूरी है, या चंद फ़ुक़हा कहते हैं मुस्तहिब है कि जब औरत दूध पिला रही है तो मर्द उसे उजरत दे, यानी उसके मवाक़िफ़ कुछ रकम मुकर्रर कर दे कि भाई कम अज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपने, जैसे आपको पता है कि वो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, तो आपने उसके लिए दूध की रकम मुकर्रर कर दी। आप उनको दूध ला के दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे 2000 का आपने दूध लगा दिया और आपने ये नियत कर ली कि मैं अपनी बीवी को, ये देखिए ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल नहीं है। आप अपनी ज़ौजा के लिए दूध लाते होंगे, फल लाते होंगे कि आपके बच्चों को, है ना? दोनों तरफ से देखें, ख़वातीन की तरफ से भी देखें कि देखिए अगर वो आपके बच्चे को दूध पिला रही है तो आपको खुशी से देखना चाहिए। आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए कि आपके बच्चे को वो बेहतरीन ग़िज़ा दे रही है, ठीक है? और दूसरी तरफ कि शौहर के ऊपर वज़न हो जाए, बार चला जाए, वो बेचारा कहाँ से दे? वो तो पहले ही नान नफ़क़ा पूरा कर रहा है, दूसरी चीज़ें। तो अगर आप उसके लिए दूध का इंतज़ाम कर रहे हैं, फ्रूट्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो आप एक रकम मुकर्रर कर लें कि ये 2000 है, और ये 2000 इसलिए है कि मैं अपनी बीवी को वो उजरत दे रहा हूँ कि वो दूध पिला रही है मेरे बच्चे को। कितना खूबसूरत इस्लाम है। तो आपका भी हक अदा किया, मोहब्बत भी बाकी रही और उनका हक भी अदा हो गया। तो इस तरह से ज़रूरी है कि उजरत दी जाए, और अगर उजरत न ले और बीवी न पिलाए तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि तुम मेरे बच्चे को दूध क्यों नहीं दे रही। नंबर 1 मसला हल। दूसरा मसला कि अगर शौहर आपको नहीं देता उसकी उजरत, ठीक है, और फिर आप रोज़े रखती हैं, तो फिर क़ज़ा या फ़िदिया होगी? तो जी हाँ, क़ज़ा होगा, क्योंकि रोज़े का ताल्लुक खुदा से है। जैसे आप अपने शौहर को वाजिबात पूरे करती हैं और आप नहीं चाहती कि आपका शौहर आपसे दुखी हो, क्योंकि वो आपको नानो नफ़क़ा देने वाला है। इस तरह से खुदा आपका खालिक व मालिक है, तो उसके साथ आप अदा करना बहुत ज़रूरी है ना? तो इसका फ़िदिया तो नहीं है कि अगर आपने क़ज़ा कर दी, जैसे वो बता रही हैं कि दूध पिलाने की वज़ह से रोज़े क़ज़ा हो गए, तो इस पे वो फ़िदिया न भी दें तो कोई मसला नहीं है, फ़क़त रोज़े की क़ज़ा दे दें, तो ये बेहतर है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आलिमा हाफ़िज़ा रबिया फ़ातिमा। अब हम अपने दूसरे 5वें सवाल की जानिब चलते हैं। एक सिस्टर ने पूछा है कि अगर कोई शख्स रोज़ अपनी जॉब पे जाने के लिए 60 टू 80 किलोमीटर सफ़र करता हो और अपनी सिटी से निकल के दूसरी सिटी जाता हो रोज़ाना, तो उसके लिए रोज़े का क्या हुक्म है? आयतुल्लाह सिस्तानी की तक़लीद के हिसाब से क्या रोज़ा क़सर होगा? ठीक है, आयतुल्लाह सिस्तानी और रहबर मौज़म दोनों के फ़तावे के एतबार से अगर सफ़र 8 फ़रसख़, और जो कि ये सफ़र बता रही हैं वो 8 फ़रसख़ के बराबर है, अगर वो 1 रोज़ करती हैं या तकरीबन 10 रोज़ के दरमियान करती हैं, जैसे आज किया फिर 10 रोज़ बाद किया, तो फिर रोज़ा कसर होगा। रोज़ा कसर होता है तो उसकी क़ज़ा क्या होती है? 1 ही रोज़ा होता है, यानी फ़दिया वग़ैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 1 क़ज़ा रोज़ा रख लेना है। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं रोज़ या फ़रसख़ों का फ़ासला जो है वो मैं तय कर रही हूँ। अब चूँकि सफ़र में जिद्दत बहुत ज़्यादा आ गई है, आप शॉर्ट टाइम में ट्रैवल कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर एक सफ़र को रोज़ तय कर रहे हैं, तो वो सफ़र के ज़ुमरे में नहीं रहता, बल्कि वो आपकी पार्ट ऑफ रूटीन बन जाता है, मामूले ज़िंदगी बन जाता है। तो ऐसे वक़्त पर आप पर रोज़ा क़ज़ा नहीं होगा, रोज़ा वाजिब है। आपको रोज़ा रोज़ रखना है, रोज़े को मुकम्मल करना है, लेकिन हाँ, अगर आपके लिए रोज़े को मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खुद ड्राइव करके जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत अहले बैत अलैहिस्सलाम, मैं अगर किताबें पढ़ती हूँ ना, कभी-कभी लोग बहुत डराते हैं, और इमाम अली क्या फरमाते हैं, ऐसे आलिम ना बनो जो लोगों को खुदा की रहमत से दूर करे। आलिम को कैसा होना चाहिए? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस कहें हाँ ठीक है आप गुनाह करें और बस अल्लाह ने आपको माफ़, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मगर ऐसे आलिम भी ना बनो कि जो खुदा सिर्फ़ खौफ़े खुदा दिलाए, है ना? इमाम फरमाते हैं ऐसे आलिम बनो कि जो खुदा की रहमत की तरफ दावत दे, क्योंकि खुदा के गज़ब से ज़्यादा को खुदा की रहमत अट्रैक्ट करती है ना? हम किसी से डर कर उसकी बंदगी अच्छी नहीं कर सकते, लेकिन किसी से मोहब्बत हो जाए, फिर बस रात भी जागें, फिर रोज़े भी रखें, फिर इबादत भी, है ना? इमाम फरमाते हैं कि डर की इबादत ना करो, वो ताजिर की इबादत है। अगर तुमने जहन्नुम के डर से इबादत की, एक बंदे की इबादत की, अगर तुमने जन्नत की इबादत की, एक ताजिर की इबादत की, कैसे इबादत करो? शुक्र के लिए, मोहब्बत के लिए इबादत करो, है ना?
اس پر بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا اس سفر اتنا زیادہ ہے کہ آپ ڈرائیو کر کے تھک جاتی ہیں، تو امام صادق کے قول کے مطابق تم اپنے عذر کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اگر وہ واقعی تمہیں محسوس ہوتا ہے تمہارا خدا بہتر جاننے والا، تو اس پر آپ اپنے روزے کو قضا کر سکتے ہیں. یعنی اگر روز بھی سفر کر رہے ہیں اس پر لیکن مشقت آمیز بہت ہے، روزہ بہت مشکل ہو رہا ہے، تو خدا کے پاس اپنا عذر پیش کریں اور خدا سے کلام کریں کہ خدا رحم مجھ سے نہیں ہو پاتا، میں نہیں روزہ رکھ پاتی، تو پھر آپ اس روزے کی فقط ایک ہی قضا دیں. Thank you so much. Thank you so much for such a detailed clarification. اس question کے لیے thank you so much. So ایک اور بہت اہم سوال آیا ہے. تو ایک سسٹر کہتی ہیں کہ جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتے ہیں کیا ان کو کھانا دینا ٹھیک ہے؟ میرے گھر میں مزدور کام کرنے آتے ہیں اور میرے شوہر انہیں منع نہیں کر پاتے. میں انہیں روکتی ہوں مگر وہ تب بھی راضی نہیں، انفورس کرتے ہیں کہ کھانا انہیں دیا جائے. اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اچھا جی، ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں یعنی روزہ خور ہوتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، تو پہلی چیز تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر ایسے لوگوں کو کھانا دینا حرام ہے. احتیاط واجب کیا ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک حرام ہے، لیکن وہ چاہے تو کسی اور، آپ اگر چاہیں تو کسی اور عالم دین سے اور کسی اور مراجع سے یا عالم سے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ان کا فتویٰ بتا دیا کہ ان کے نزدیک حرام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آگے بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو رہبر معظم کے نزدیک اور دوسرے علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ خور آپ کے کھانا دینے سے، آپ کے کھانا روکنے سے، جیسے کہ کوئی روزہ خور ہے اور روزے کا خیال نہیں رکھتا، روزہ جان کر چھوڑتا ہے، اور آپ کے کھانا نہ دینے سے وہ واپس روزے کی طرف آ جائے، یعنی وہ یہ سوچے کہ بھائی مجھے تو کھانا مل ہی نہیں رہا، کیا فائدہ، اس سے اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو ایسے حالت میں آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو کھانا نہ دیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ روزہ اس سے باز نہیں آئے گا، روزہ خوری سے وہ روزہ چھوڑے گا ہی چھوڑے گا. اور پھر یہ جو سینیریو انہوں نے پیش کیا ہے کہ مزدور ہیں اور خود شوہر بھی کہہ رہے ہیں اور شوہر کو کھانا کھانے سے کسی کو روکنا اچھا نہیں لگتا، تو ایسی بنا پر کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ روزہ خوری سے باز نہیں آئیں گے، تو آپ پر ہے کہ اگر آپ کے حالات تنگ ہیں، جیسے کہ آپ کے شوہر آپ کو بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ شریعت کی اصطلاح میں حرام نہیں ہے، بالکل حرام نہیں ہے، یا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان کو کھانا نہیں دیں، دوسری چیز اخلاقی دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو آپ کیا کریں، کھانا تازہ نہ دیں، کھانا رکھا ہے ٹھنڈا کھانا دے دیں، تاکہ وہ اس سے یہ تھوڑے تھوڑے اقدام ہے، لیکن اخلاقی اور انسانی دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ایک شخص روزہ نہیں رکھنے والا اور وہ پھر آگے جا کے کھانا کھائے گا، تو اس کے لیے جو آپ کی سچویشن ہے وہ مزدوروں والی سچویشن، اس میں اور پھر آپ کے شوہر بھی ایمفیسائز کریں، تو اس میں اجازت ہے کہ آپ انہیں کھانا بنا کر دے دیں، مگر کوشش کیجیے کہ بہت اہتمام نہ ہو، روزہ داروں کے سامنے نہ کھائے، بنانے والا خود روزے دار نہ ہو، اور اگر بنانے والا خود روزے دار ہے، آپ خود روزے سے ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جان چھڑا دینا، ظاہر شوہر نے کہہ دیا جان چھڑانی، ایک دن بنائیں دوسرے دن نہیں بنائیں، کہ وہ خود ہی جو ہے وہ باز آ جائے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عالم حافظہ ربیہ فاطمہ. اب ہم اپنے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں. اپنی آخری سوال کی جانب چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امام اثر اکیڈمی کا پلیٹ فارم اٹس این اوپن پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ اپنے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں، جس کا سلوشن، جس کا جواب آپ کو ڈیٹیل میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ. جی، تو ہمارا آخری سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے؟ بسم اللہ تعالی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے یمنا. ہم لوگ اکثر بہت سارے سوالات علماء سے بھی اور خصوصاً عالماؤں سے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ شرم آتی ہے. ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ شرمانا از ناٹ واجب ہے نا، لیکن اپنے دین کے معاملات میں خاموش رہ جانا اور غلط طریقے سے انہیں انجام دینا از ویری کریٹیکل تھنگ اینڈ ویری بیڈ تھنگ، جس میں ہمیں کوپ اپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہ نہ سوچیں بھائی اوپن پلیٹ فارم ہے ہم ایسے سوال کیسے کریں. تو پہلی بات تو کہ آپ کے جوابات، آپ کے سوالات آپ کے نام کے ساتھ نہیں لیے جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فقہی مسائل ہیں. آج کل اسکول میں بچوں کو چھوٹی سی عمر سے، بہت ارلی ایج سے بچوں کو آگے کے مسائل کے بارے میں آشنا کیا جا رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے
प्रैक्टिकली तौर पे बहुत छोटी सी उम्र से तैयार हो जाते हैं, और ये रिसर्च है। हम मुसलमान अगर अपनी बात करें तो हम इस चीज से पीछे रह जाते हैं कि नहीं शर्म और हया, हर चीज का दारोमदार शर्म और हया से नहीं होता। अगर आप इन सवालात को अपने मदार में रहते हुए, हुदूद में रहते हुए जो खुदावंद आलम ने नाफिज की हैं, अगर आप पूछ सकते हैं और उनका जवाब दिया जा सकता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। इन मसाइल को ओपनली खुदा ने कुरान में बयान किया। कुरान जैसी पाक शय कोई चीज है, सबसे ज्यादा हयादार जात आले मोहम्मद की जात है जो मुतहम्मिल कुरान है। उन्होंने हमें के मसाइल बयान की हैं। उनसे खवातीन आके पूछते थे, उनसे आके पूछते थे, तो हम तो सवालात करने में झिझकते हैं। तो जिन्होंने ये सवाल किया है, मैं बहुत उनको थैंक यू भी कहूंगी कि उन्होंने ये सवाल किया और उन्हें इजाजत भी दी कि हम इस सवाल को ओपन भी कर सकें। दूसरी बात, जब हमें जवाब देंगे तो इंशाल्लाह हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि अपनी हुदूद से तजावुज न करें। ठीक है, बहुत अहम मसला है जो प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पे आगे नहीं लाया जाता। और हम अक्सर जब दुरूस में शामिल होते हैं, हमारे सामने जो उलमा शामिल होते थे, जब हम बहुत छोटे तो शर्माते भी थे और हंसते भी थे कि किस तरह की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रही, लेकिन उस वक्त अंदाजा हुआ कि इन मसाइल से जानना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बता रहा हो। अगर शर्माते रह जाते तो वो उलमा जिन्होंने अपनी इस्तिफ्ता में अपने तौजील मसाइल में तमाम मसाइल जिक्र किए, वो कैसे करते? तो इन सवालात का पूछना जुर्म नहीं है। आप हया के दामन को थामते हुए अपने तमाम तर सवालात को पूछ सकते हैं। अब रहा जवाब, जवाब थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा डिटेल है कि शौहर अपनी ज़ौजा का बोसा ले सकता है या नहीं ले सकता। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिवायत भी मेरे पास मौजूद है, उलमा के नजदीक अगर शौहर उलमा के नजदीक अगर शौहर इस बात पर यकीन रखता हो कि बोसा देने या गले लगाने से, हक करने से उससे उसकी शहवत नहीं उभर जाएगी, तो उस पर बोसा देने में कोई मसला नहीं है। बल्कि इस पर रसूलुल्लाह की हदीस भी है। किसी ने पूछा कि क्या ज़ौजा का बोसा लिया जा सकता है, तो आपने फरमाई वो फूल ही तो है, उसे सूंघने में क्या बुराई है, लेकिन इज्तनाब करो। इसी हदीस का पार्ट क्या है, वो तुम्हारी ज़ौजा एक फूल की मानिंद ही तो है जिसको वो सूंघता है, मगर बेहतर है कि वो ज़ौजा के बोसे से परहेज करे। इस तरह इमाम सादिक से फरमाया कि क्या एक बिस्तर में लेटा जा सकता है रोजे की हालत में? फरमाया नहीं, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि तुम अगर एक बिस्तर में लेटो तो तुम्हारी शहवत गालिब आ जाए, और खुदा न खास्ता अगर इस हाल में रोजा टूट जाता है तो इसकी कफारा बहुत ज्यादा सख्त है। बताती चलूं, एक गुलाम को आजाद करवाना, फौरन एक गुलाम को आजाद करवाना, ठीक है। दूसरी चीज ये है, कफारा बहुत सख्त है। तो तरीका ये है कि अगर एक बिस्तर में लेटो, बल्कि मैं आपको रिवायत बताऊं, रिवायत क्या है? रिवायत ये है कि अगर रोजे की हालत में हो तो एक जवान दूसरे जवान के साथ भी ना लेटे, यानी एक लड़का भी एक लड़के के साथ या खातून भी एक खातून के साथ करीब होके ना लेटे, और जब ज़ौजैन लेटे तो बीच में एक कपड़ा जरूर रख लें। ये अदब और एहतराम है रमजान के जो हमें आले आ रहे हैं ना। तो पहली चीज ये कि अगर आपको यकीन है कि बोसा देने से शहवत उभर सकती है मर्द की, तो फिर बोसा देना उस वक्त हराम है, न दे बोसा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि ये बोसा देना, ये गले लगाना फकत एक रिचुअल के तौर पर भी होता है और इससे कोई भी ऐसे इम्कान नहीं होंगे, पूरा यकीन है आपको अपने नफ्स पर, जो कि हमें नहीं है अपने नफ्स पर यकीन, तो फिर आप गले लगा सकते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बेहतर है कि दूरी इख्तियार की जाए। फिर मौला अली ने बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए। मौला अली के जुमले क्या है, मैं आपको इसलिए देख के बता रही हूँ ताकि मैं जरा सा भी वो ना कर सकूं। इमाम फरमाते हैं, तुम लोगों में से किसी एक को हया नहीं आती कि दिन भर रात तक के लिए सब्र ही कर लो? अगर एक इंसान तमाचा मारे तो नौबत कत्ल भी आ सकती है, यानी अगर इंसान तमाचा मारता हो तो हो सकता है वो इस कदर पागल है जो कि वो कत्ल भी कर सकता है। तो मौला एक निशान, एक इशारा दे रहे हैं, आप इशारा इंशाल्लाह बेहतर समझ सकते हैं। तो ये इमाम अली का तो बहुत सख्त कॉल है, मैं बयान नहीं करना चाहिए, मैंने बयान कर दिया ताकि आप तक मैं मामलात को पहुंचा दूं। तो बहरहाल इसका कुल्लिया ये है कि बेहतर है कि फासला रखा जाए, लेकिन फिर भी अगर एक ऐसा रिचुअल है, आपस में मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार है, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी बेहतर है कि इससे इज्तनाब किया जाए, साथ लेटने से इज्तनाब किया जाए और बीच में कोई कपड़ा रख लिया जाए। और इसी तरह से मौला फरमाते हैं, कोई मर्द मर्द का बोसा भी न दे, अगर बूढ़ा है तो बोसा दे सकते हैं, मर्द भी मर्द का बोसा ना दे, गले भी ना लगाए। आप ये देखिए कितनी ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कोई चीजें हैं ना कुछ इश्यूज हैं जो रोजे में इंसान का फकत बदन नहीं, उसकी रूह के अंदर से वो गिलाजत को निकालना है, वो हर उस तरह से बचाने का नाम है रोजा। नफ्स को ही तो मारना सीखना है ना। तो इंशाल्लाह इसकी पासदारी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन आलिमा हाफिज़ा रबिया फातिमा।
यकीनन आज के आस्क एन आलिमा के क्वेश्चन से आप मुस्तफीद हुए होंगे और आपको अपने हर सवाल का डिटेल जवाब मिल गया होगा और आपने इन सवालात से बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको आज की क्वेश्चन आंसर क्लास पसंद आई है तो इमाम असर एकेडमी की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, अपने कमेंट्स सजेशन से ज़रूर आगाह करें और इमाम असर एकेडमी के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप भी इस अजीम काम में शामिल होकर अजर व सवाब हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह हमारे अगले सेशन के लिए हमारा अगला टॉपिक होगा फितरे के अहकाम। आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं at imameasaracademy@gmail.com or on our Facebook page, or you can also ask your questions in the comments below, inshallah. We will end our class with Dua Imam Zamana and we will all read together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyikal Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hazihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu zakatahu وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आ जाए सरहान महदी दमे नाज आ जाए सरहान महदी या महदी